So let us understand important maxims, part 2, which generally comes in exam. And these maxims are set a principle of law which has been accepted and adopted by many countries, including our country. So, and these two maxims are basis of criminal law. First says that actus me invite factus non est meus actus. It means act of mine without my will is not my act. An act which is done by a person against his will is not his act. So law says अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी के बिना कोई काम कर रहा है तो उस व्यक्ति को उस काम के लिए लायबल नहीं कर सकते, ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति वो काम प्रेशर में कर रहा है, कोर्जन में कर रहा है, ड्यूरेस में कर रहा है. So for that we cannot hold him liable. So for making a person liable, his or her act must be with his will or with her will. Voluntarily act must be there. And section 39 of IPC defines voluntarily. Now, actus non facit ream nisi mensat rea, an important maxim, which says that act not only makes a person guilty unless it is coupled with a criminal intention or a guilty mind. So, for a crime, we must have actus rea and mens rea, we all know. So, for making a person liable for criminal liability, that person must do an act along with criminal intention. अगर वहां पर दुराशय नहीं होगा तो वो व्यक्ति उस कार्य के लिए लायबल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में कोई ऐसा काम कर रहा है जो हो सकता है कि वो एक क्राइम के आता हो डेफिनेशन में, पर फिर भी वो उसके लिए लायबल नहीं होगा. तो हमारे आईपीसी में कई ऐसे टर्म्स हैं लाइक डिसऑनेस्टली, इंटेंशनली, नोइंगली, रीजन टू बिलीव. कई ऐसे टर्म्स हैं जो दिखाते हैं कि मेंस रिया वहां पर होना आवश्यक है. So this actus non facit ream nisi mensat rea says that only act cannot make you liable. It must be coupled with, it must be along with the criminal mind, guilty intention, दुराशय के साथ होना चाहिए. Now, delegatus non potest delegare. Section 190 of Indian Contract Act, धारा 190 भारतीय संविधान अधिनियम के तहत ये मैक्सिम को इनकॉर्पोरेट किया गया है. इसका मतलब ये होता है कि अ डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन नॉट बी री डेलीगेटेड. जनरली अगर कोई प्रिंसिपल ने कोई अथॉरिटी अपने एजेंट को दी है तो वो एजेंट वो अथॉरिटी किसी और को नहीं डेलीगेट कर सकता है. ये बात इसमें कही रखी है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगारे, सेक्शन 190 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. फोर्थ, lex non causit ad impossibilia. It means that law will not compel a person to do that thing which he cannot do, which is not possible for him to do. So law cannot order to do an impossible thing generally. So it means कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास करेगा जो इम्पॉसिबल होगा करने के लिए. For example, if a person is earning 1 lakh rupees per year, now the court will not order to give 2 lakh 3 lakh rupees for maintenance. Court and law also see the possibility of the fact. So theory of impossibility is incorporated, and in tax matter this maxim is been uh, discussed. Fifth, nemo dat cured non habet. This maxim is in section 27 of Indian Sales of Goods Act 1930. It means that no one can give what he has not. मतलब जो चीज एक व्यक्ति के पास नहीं है वो चीज वो दे नहीं सकता. Generally, a person who is not an owner of the property, now that person cannot sell that property, and that person cannot give a better title to other person. But this maxim has many exception in Sales of Goods Act, in Contract Act, in TPA we can see. But the general principle is that an owner of a property can only give a better title. So this is that maxim. Now this 6 and 7 are basis of res judicata.
Section 11 of CPC. Nemo debet vis vixeri pro ona ad Adam causa. It means no person shall be vexed twice for same cause. इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति को सेम सेट ऑफ फैक्ट्स के लिए दो बार ट्राई नहीं कर सकते। दो बार आप मान लीजिए केस है, उस केस को कोर्ट ने कर दिया डिसाइड, तो उस केस को दोबारा उसी केस ऑफ फैक्ट्स को खोलकर उस प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को परेशान करने का जो काम होता है वो इसमें अलाउ नहीं किया गया है। तो सेक्शन 11 जो है सीपीसी का वो भी ये बात करता है, रेस जुडिकेटा, थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। सो इफ both parties are same, cause of action are same, so and the court has decided the matter, now any of the party cannot reopen that matter for same cause of action. They are barred because the matter has been decided. So nemo debit vis vixeri pro ona et Adam causa. No person shall be vexed, मतलब inconvenience, vexed twice for same cause. हम देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज सब आर्टिकल 2 which says about double jeopardy. So no person shall be prosecuted and punished for twice. So if एक बार डिसीजन आ गया तो उसे दोबारा ओपन करके दूसरी पार्टी को या फिर किसी पार्टी को हम नुकसान या फिर उसे इनकन्वीनियंस नहीं पर फैल सकते. So this makes him say that. Now seventh, interest publica at sit finis litium. This maxim, also a basis of ADR. It says that it is with the interest of the state that litigation must finish. मतलब अगर स्टेट में कम केस होंगे, कम लिटिगेशन हो, कम पेंडिंग लिटिगेशन होगा तो ये स्टेट ये अच्छा है. सो फॉर वी हैव ADR सिस्टम, वी हैव अडॉप्टेड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, जहां पर केसेस को कोर्ट से पहले ही रफा दफा या फिर सॉल्व करने की बात की जाती है. तो इट इज गुड फॉर स्टेट दैट स्टेट मस्ट हैव लेस नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस. सो इंटरेस्ट रिपब्लिका at sit finis litium. Now eighth, actio personalis moritur cum persona. It means action of a person dies with a person. Personal right dies with a person who possesses that right. Generally in tort contract, a person who has right of action, a cause of action, if that person dies, then that cause of action dies with that person. So अगर कोई व्यक्ति जिसने टॉर्ट किया, जिस पर टॉर्ट हुआ, वो व्यक्ति वो कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वो ब्रीच हो जाता है, कोई पार्टी अगर उसमें मर जाती है तो वो एक्शन जो है, वो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो खत्म हो जाता है. पर ये जो मैक्सिम है ये बहुत क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि कहा गया ये बहुत अनजस्ट है. तो हम देखते हैं कि अब अगर कोई सिविल मैटर में कोई व्यक्ति मर जाता है केस के बीच में, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उसकी जगह ले लेते हैं और केस को आगे बढ़ाते हैं. ऑर्डर 22 ऑफ सीपीसी डील विद दिस मैटर. अगर डेथ हो जाती है किसी पार्टी की केस के दौरान तो क्या होगा. सो दिस मैक्सिम लिमिटेड एक्सटेंट में इंडिया में अप्लाई होता है. नाउ नाइन्थ वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम, नेमो मोइट्रस प्रिसिम्यूटर मैनफ्री. No one shall meet his maker with a lie on his lip. मतलब डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहा है. सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की. इसमें ऐसा कहा गया कि जो व्यक्ति मर रहा होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता. अ पर्सन इज डाइंग विल नॉट मीट हिज मेकर, हिज गॉड, विद अ लाई इन हिज लिप. सो ये फिलॉसफी यहाँ पर मानी जाती है और डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सब्सटेंसिव एविडेंस माना जाता है. तो अगर कोई व्यक्ति मरते हुए कोई बात कह रहा है तो उस बात की एक बहुत अच्छी सेंसिटी होती है, वैल्यू होती है जो कोर्ट भी मानती है. तो डाइंग डिक्लेरेशन जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ 10th, एक्ट्यूरियो इनकम्बेंट ऑनस प्रोवेंडी. इट मींस जो व्यक्ति असर्ट कर रहा है एक फैक्ट को, अ पर्सन हु इज असर्टिंग अ फैक्ट मस्ट प्रूव दैट फैक्ट, और अ प्लेंटिफ हैज बर्डन टू प्रूव द फैक्ट, or the person who is giving his claim, that person must give the proof of his claim. Section 101 of Indian Evidence Act deals with this maxim. Plaintiff जो अपना
केस ला रहा है उसे उस फैक्ट को प्रूव करना है, ना कि अदर पार्टी को प्रूव करना है। तो ओनस ऑफ जो प्रूव है वो प्लेंटिफ पर होता है, ये बात करता है। 11 लेक्स मल्ला लैक्स नल्ला। सेंट थॉमस एक्विनस एक बहुत ही फेमस ज्यूरिस्ट कह सकता हूं मैं, थे, और उन्होंने ये मैक्सिम का कहा था, इट मीन्स दैट अ बैड लॉ इज नो लॉ, लॉ मस्ट बी गुड। नेचुरल लॉ थ्योरी में है गुडनेस और बैडनेस और जस्टिस का कंसेप्ट। सो वहां पर कहा गया कि एक बैड लॉ जो होगा वो लॉ ही नहीं होगा। सो फॉर अ लॉ इट मस्ट बी गुड लॉ। 12 this term always come in books or Barrett as well, mutatis mutatis. It means with necessary change similar procedure will be applied but change will be there. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं प्रोसीजर दे रखा है हमें अपील के लिए, फर्स्ट अपील के लिए दे रखा है प्रोसीजर ऑर्डर 40 में सीपीसी के, पर सेकंड अपील के लिए जो दे रखा है प्रोसीजर वो कहा गया कि ऑर्डर 41 की तरह ही होगा विथ नेसेसरी चेंज। सिमिलरली हम देखते हैं ऑर्डर 47 में, उसमें भी कहा गया कि जो प्रोसेस हमारा होगा अपील फाइल करने के लिए वही प्रोसेस मोटेटिस मुंडाटिस अप्लाई होगा रिव्यू के लिए। सो विथ नेसेसरी चेंज सेम टू सेम वो अप्लाई करेंगे, पर कुछ चेंज अगर होगा तो उस चेंज को इंक्लूड कर देंगे। तो म्यूटेटिस मुंडाटिस, म्यूटेटिस मुटेंडिस, इट मींस विथ required or necessary change, that same thing will be applied with the change which is required. Now let's see this question for all of you. D minimus lex non curate, this maxim is related with which section of IPC? Answer in comment box if you knew the answer. Okay, thanks a lot. All the best.